Hey guys, welcome back to another session of Instagram Q&A. This is Divjot. I hope you all are having a great Sunday. So today I'm going to bring my guest, which is Mr. Hassan Oud. Hassan Oud from House of Hassan. So today we're going to be talking to him about his house, his journey from being a reviewer to now a creative director of his own house, how he made his journey, his favorite perfume. Hey Videsh, hey Hassan has joined, hey everyone, hey Praveen, Vasai, hey everyone. Hello. So let the people join. I'm having my tea. I hope you all are having your tea also. So, alright. So yesterday I released a video on Ajmal, the best Arabian style Ajmal Mukhallat Attars. There were some good choices which I put through, a lot of testing which I did through. So I hope you have gone to my YouTube channel and watched that particular video. Hey Ibrahim, hey Irfan, hey everyone. So yeah, so that video came through. That video was pending for a long time. I'm right now also working on best Hindi oud video. What I'm planning to do is that first I will create a video on what is oud, the history of oud, kind of give you journey of oud, how oud has come through, what kind of ouds are available in the market. I will do the first video on that. Then I will do top Hindi ouds which are available in India. So I have around 14 to 15 good Hindi ouds from every house you can think of, and I'm testing that, and hopefully that video will also come through. I'm also planning to create some content on designer fragrances. So that also content I'm working. Actually, my scent of the day is Terre de Hermes, Uetens Vetiver. So yeah, those kind of contents which are coming through, and yeah, so obviously I want the content to be quite wide. So we need to have like designer, we should have attar. As a reviewer, I feel we should talk about everything, right? You should not just concentrate yourself to one brand, or I will only talk about niche perfumes. I think that's not a good reviewer in my opinion. Not just niche perfume or just attars. As a reviewer, you should look to broaden your horizon. Some things which you're not comfortable with. Say for example, alternative fragrance. I was not a big fan of alternative fragrance, to be honest with you. But I have understood that you as an audience want some cheap alternative fragrance. So as a reviewer, it's my job to review those kind of fragrance for you. It's just not that what I like, it is what you like. So that's the whole concept of this channel, that that I need to concentrate on. Hey Imran, hello, how are you? Hey everyone, hey Satnam. Alright, so let's do one thing. Let's bring Hassan onto this chat. So let me take a moment to bring Hassan. So I hope he accepts it. हेलो। हे हसन भाई, क्या हाल चाल है आपका? जी बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया। तो दोस्तों, मैं बिफोर हसन से बात करना स्टार्ट करूं तो मैं आपको एक थोड़ी स्टोरी बताना चाहता हूं। लास्ट ईयर एक्चुअली मैं यूट्यूब पे जो चैनल मैंने खोला है, ये एटलीस्ट मैं 2016 से सोच रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा। तो लास्ट ईयर हसन भाई ने जब अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो हसन भाई ने मुझे फोन किया कि दिलजोत, आई थिंक टाइम आ गया है, आप अपना चैनल खोल लीजिए। और इन्होंने बहुत इंकरेजमेंट किया मुझे जो चैनल खोला है। तो मैं हसन भाई इज द पर्सन हु इंकरेज मी टू स्टार्ट माय चैनल एंड ही गिव मी द फाइनल पुश। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, और मैं प्लेटफॉर्म में बोलना चाहता हूँ कि ये हसन के कारण ही है जो मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। नहीं, मैंने तो सिर्फ पुश किया था, वो तो आपका एक्शन था, आपने किया। मैं तो कई सारे लोगों को बोलता हूँ, यू आर द वन हु चूज़न दिस। सो करेक्ट। तो और बताइए हसन भाई, कैसे चल रहा है? हाउ इज इट एवरीथिंग गोइंग? बहुत सही चल रहा है। लास्ट हम लोगों ने अभी जस्ट नए ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं, तो वी आर इम्प्रूविंग। अच्छी बात है ना, करेक्ट। ये जी बेबी स्टेप्स हैं, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपने लास्ट ईयर ही अपना चैनल किया है, और आपने अपना स्टोर भी खोल लिया है। बहुत अच्छा लगता है हाँ, मुझे। अभी ये 1 साल भी नहीं हुआ।
We started in November Correct. 2021 22 2020 एंड ये 21 है, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ। जी जी जी। कुछ करते तो हैं अच्छा है। तो हसन भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक बहुत ही माने जाने रिव्यूअर हैं इंडिया के अंदर। अतर के में लोग आपके पास आते हैं और आपका व्यूज काफी मानते हैं। आप एक रिव्यूअर से आप आपने एक ब्रांड बनाया हसन वुड, उसके आप काइंड ऑफ अ क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। तो ये जो जर्नी आपने करी फ्रॉम अ रिव्यूअर टू दिस क्रिएटिव डायरेक्टर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। मतलब मेरा हमेशा से ये चाहना था कि मुझे मेरा एक खुद का हाउस हो, एक परफ्यूम हाउस हो या एक इत्र हाउस हो, समथिंग लाइक दैट। बट ये कभी सिंक नहीं हो रहा था प्रॉपर कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप हमेशा सोचते हो कि कुछ बड़ा हो जाए, देन वो करते हैं इस तरह से। एंड ये फाइनेंशियली भी वायबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हाउस खोलना है एंड देन ये सब करना। तो मैं सऊदी अरेबिया में था, वापस आया था इंडिया में कुछ 6 महीने की छुट्टी लेके, ये अभी यहाँ रहेंगे, फिर दोबारा से रिफ्रेश होके जाएंगे, काम करेंगे। बट लास्ट डे जब जिस दिन मेरा टिकट था, उसी दिन सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन लग गया, अच्छा। और इंडिया में कुछ दिन के बाद लगा। तो देन आई थॉट कि अभी बहुत सारा टाइम है, अभी काफी सारा कंटेंट डालते हैं। तो मैंने रमजान में कुछ 30 वीडियो करी थी अत्तर से रिलेटेड, राइट। एंड जो एक चीज मैंने नोटिस की कि अत्तर की ऑडियंस बहुत है, जी। ठीक है, एंड आपको वही देना है जो वो मांगते हैं। और एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा था कि मैंने उसमें सस्ते सस्ते इतर भी रिव्यू किए हैं, जो कि इतनी छोटी छोटी बॉटल में आते हैं, और महंगे महंगे भी किए हैं, यानी 3,000 4,000 5,000। और एक चीज नोटिस कर रहा था मैं कि वो सारे जो हैं वही 10 रुपए की बॉटल में आ रहे थे, ठीक है। देन आई स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग ब्रांड्स की आप थोड़ा इसका गेम ऊंचा करो, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑडियंस थी, मुझे दिख रहा था स्टैटिक्स में कि काफी बंदे जुड़ रहे हैं, लेकिन जब वो इतनी छोटी सी बॉटल उनको दिखाओ ना, तो फिर वो मजा नहीं आता था। और इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन थी कि यार 50,000 रुपए का इतर है और उसको वही 10 रुपए की बॉटल में दे रहे हैं। तो ये एक थॉट था। दिन में बहुत सारे ब्रांड से बोला, तो फिर बात ये आती थी कि अरे नहीं, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है और कॉस्ट जो है वो कस्टमर के ऊपर चली जाएगी, 10 रुपए की बॉटल कस्टमर पे चली जाएगी, बहुत सारे लोगों। तो धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि चलें, अब मैं जो बात का जो प्लान कर रहे हैं अभी करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में टाइम बहुत था अपने पास। तो आई स्टार्टेड कॉलिंग अराउंड, मैं दिन के कम से कम 300 कॉल करता था लोगों को, अच्छा। ब्रांड्स को। बाकी मैं, क्योंकि मैं मेरी आदत है, मैं मांगने से नहीं डरता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोल देंगे नहीं नहीं कर पाएंगे। इवन आप सोचो जिस कैलिबर के आप बंदे हो, मैं जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं सोचूंगा भी नहीं कि आपको मैसेज करूं। मैंने किया, मांगा कि भाई आप एक वीडियो बना दो, यू सेड यस। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, आप बोलते हैं कि नहीं बनाऊंगा, ठीक है। पावर ऑफ आस्किंग, ये मुझे बहुत पहले रियलाइज हो गया था। तो मैं, जैसे जसकीरत भाई कितने बिजी रहते हैं, लेकिन मैंने जी। उनको बोला कि यार प्लीज मेरे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो यू सेड यस, राइट। श्रद्धा जो कि काफी बिजी रहते हैं, बोला कि आप ये कर दो, एक वीडियो बना दो, शी सेड यस। माधवन भाई जो कि काफी बिजी रहते हैं, मैंने उनको बोला एक वीडियो बना दो, शी सेड यस, बनाएंगे। तो ये जो है मुझे बहुत पहले रियलाइज हो गया, इसलिए मैं मांगने से नहीं डरता। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे इस तरह से फिर देन बॉटल्स कहाँ से सोर्स करनी है, देन बॉक्स कहाँ से आएंगे। तो अभी जितनी भी सारी चीजें हैं जो इनके ऊपर प्लेट्स लगती हैं, जैसे ये प्लेट लगी हुई है, ये कहाँ से आएगी, टॉप क्वालिटी की प्लेट कहाँ से आएगी। तो ये सब रिसर्च करते करते अराउंड कुछ 5-6 महीने जो है वो लग गए मुझे। एंड देन उसके बाद जो है हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। नहीं, ये तो मतलब बहुत अच्छी जर्नी है, और ये मैंने आपसे सीख रहा हूँ कि पावर ऑफ आस्किंग जो आपने बोला, ये लोगों से बात करनी चाहिए, और बात करके जी। जो क्लैरिटी है, और पूछने से क्या कोई हर्ज नहीं होता मेरे हिसाब से। तो वो बहुत जी। अच्छी चीज है। तो अब हाँ, आपने इसमें जैसे बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब एक एक वही है कि मतलब अब ऐसा भी नहीं कि अब सीधा जाके प्रधानमंत्री जी को ईमेल कर देंगे। इसमें स्टेप्स होने चाहिए, इसके बहुत सारे वो हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या आउटकम होगा, ज्यादा बोल देंगे लोग कि नहीं, बट आप फेस ये करिए कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, बट वो इतना परसेंटेज नहीं होगा जितना कि आपको एक्सेप्टेंस मिले, लोग बोल देंगे कि हाँ करेंगे, ऐसे करके। करेक्ट। जैसे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, क्या आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन आपको एक स्टैंड आउट करने की, मतलब एक आपको स्टैंड आउट करती है? जैसे अब इंडिया के अंदर बहुत अत्तर हाउसेज हैं, अब सबको पता है कि बेस्ट प्रेजेंटेशन आपकी है, तो ये आपने कुछ वो कॉन्शियसली किया था कि भैया ये मैं प्रेजेंटेशन अच्छी रखूंगा ताकि मैं एक स्टैंड आउट करूं?
इसमें दो थॉट्स हैं, एक ये भी है, दूसरा ये भी है कि इत्र को ना वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो परफ्यूम्स को मिल रही थी, राइट? कि ये फ्लैकॉन जबरदस्त जबरदस्त आ रहे हैं, ये अच्छे अच्छे स्प्रेयर आ रहे हैं, वो इज्जत जो है ना इत्र को नहीं मिल रही थी, लोग मान लें। क्योंकि आप भी, आपने, आपके पास कितने ऊद हैं, बहुत सारे महंगे महंगे ऊद हैं, लेकिन आपने बहुत कम ही ऐसे ब्रांड होंगे जिन्होंने एक क्रिस्टल बॉटल दी होगी, ताकि जब आपके शेल्फ में रखी हो तो आपको भी देख के अच्छा लगे कि ये कुछ चीज है। तो ये परफ्यूम्स के अंदर बहुत अच्छी चीज है कि ब्रांड्स जो है इंटरनेशनल ब्रांड्स कर रहे हैं। इंडिया में तो अभी कोई नहीं कर रहा है, मिडिल ईस्ट के ब्रांड ज्यादा ये सब प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ख्याल करते हैं। एंड तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भाई इसको इज्जत देनी है इत्र को, और अगर ये मेरे मार्जिन में से कुछ लेके जाता है तो नो इश्यू, मैं अपने उस पर कर दूंगा। लेकिन एक काइंड ऑफ समझ लिए एक रिस्पेक्ट जो है मुझे मेरी ये ऑयल्स के लिए, इसलिए मैं इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करता हूँ। करेक्ट। तो मैं मतलब इस पे एक पॉइंट देना चाहूंगा, जैसे कि कुछ लोग 60,000 पे तोला ऊड बेचते हैं। अब वही ऊड, वो जो उनका 10 रुपए वाला या 100 रुपए वाला अत्तर होता है, उसी बोतल में वो 60,000 रुपए वाला डाल देते हैं। तो वो एक मुझे एकदम गलत चीज लगती है कि उसको जो 60,000 रुपए वाला ऊड है ना, उसको हाथ लगाने से डर लगना चाहिए। इतनी सुंदर बोतल में होना चाहिए कि हाथ लगाते हुए डर लगे कि भैया इसको टच करना, इसको टच नहीं करना इसको लगाऊंगा तो मतलब सोच समझ के हाथ लगाऊंगा। तो नहीं, अभी जब से जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में ब्रांड है, मैंने सबको बोला था कि आप कुछ करो, ऐसे करको। इवन मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ब्रांड्स को इंडिया में कैसे फ्लरिश करना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है जितने भी ब्रांड्स हैं कि हम छोटे ब्रांड्स हैं। आप नोटिस करोगे कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लूंगा, बट वो कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं छोटे ब्रांड्स हैं। बट इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि ना, वी आर स्मॉल बिजनेस ओनर। ये स्मॉल क्यों भाई, क्यों, किस स्केल पे आप नाप रहे हो अपने आप को? एंड देन जब वहां आप अपने साथ स्मॉल का वर्ड जोड़ लेते हो ना, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आपको कुछ भी करना है, अरे यार हम तो छोटे हैं छोटे हैं छोटे हैं छोटे हैं। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि अगर आप उनको बोलोगे कि आप बॉटल में ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, तब चलता है भाई, चल रहा है तो चल रहा है। ये ज्यादा लोगों को थॉट पर, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को बोला कि आप ये क्रिस्टल बॉटल यूज करो, इस तरह का बॉक्स यूज करो और थोड़े कम पैसे कमा लो, लेकिन नहीं मानना था किसी को। बट देन जब हम लोगों ने लॉन्च किया, जो हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला, इवन मैं भी, मतलब इतना उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा होने वाला है, तो मैं खुश शौक हुआ। फिर जब मैंने स्टैटिक्स दूसरे ब्रांड के साथ शेयर किए कि देखो ये चीजें ऐसे हो रही हैं, आप भी करो, देन पीपल रियलाइज कि अब वो थैंक यू कार्ड भी देते हैं उसके अंदर, अच्छे से पैक भी करते हैं। कुछ ब्रांड्स अभी रिबन भी यूज करने लगे हैं, कुछ बंदे जो है अभी क्रिस्टल बॉटल्स पे भी आ गए हैं। तो ये सब सारे चेंजेस जो हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। अब जब हम इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, इंग्रेडिएंट्स अच्छे होते हैं, तो थोड़ा हमारा प्राइस पॉइंट बढ़ जाता है। अब इंडिया जो है एक कॉस्ट कॉन्शियस कंट्री है। हम बहुत कॉस्ट कॉन्शियस है, चाहे जितना मर्जी पैसा हो हमारे पास, हम कॉस्ट कॉन्शियस तो है ही है, ठीक है। चाहे अमीर से अमीर बंदा हो, गरीब से गरीब बंदा हो। तो उसके अंदर कैसा रिस्पॉन्स मिला है, क्या क्या फीडबैक मिली है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो देखिए, अब क्योंकि हमारे पास जो इत्र में भी है वो 2-3 रेंजेस हैं। वो स्टार्ट होती है काफी सस्ते से और काफी महंगे तक जाती है, राइट। एंड अगर आप ज्यादा उस पर फोकस करेंगे उन चीजों पे, जैसे अगर आप उस लेयर पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि जो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस है, तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं उनके ऊपर जो ये सब चीजें ऑलरेडी अफोर्ड कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइस ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा है, प्राइस मार्केट के हिसाब से ही है। और क्योंकि मैं इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ, इन सब चीजों का खुद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इज्जत भी बहुत है। मतलब मुझे पर्सनल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बेंगलोर से, मुंबई से, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि मतलब आपने चालू किया, खुद का कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हेयर्स टोकन माई ऑफ लव, और आप ऐसे ऐसे करके ये हमारा भेज दीजिए। तो ये भी सारी चीजें। एंड अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये बहुत माइनर होता है। मैं अपने किसी प्रोडक्ट्स की जो प्रेजेंटेशन है वो 10% से ज्यादा टोटल कॉस्ट का वो लेके जाता ही नहीं हूँ, ताकि वो ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स के नाम की चीज ही नहीं है कुछ। करेक्ट। प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से ना, एक अत्तर या परफ्यूम की 20% मार्जिन, 20% उसकी वैल्यू होती है, 80% तो जूस होता है। जूस मेन होता है। आप बहुत सुंदर बोतल होगी, उसमें बेकार जूस होगा तो कोई फायदा नहीं है उसका, राइट। तो इसके ऊपर मतलब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब
ये कहते हैं आपके जो फेवरेट अत्तर्स हैं, जो आपने जो लाइन लॉन्च करी है, उसमें आपने टॉप 5 अत्तर्स बताइए मुझे कौन से हैं। देखिए सबसे टॉप पे तो होगा वो मुखल्लत अल हिंद, क्योंकि संदल, रोज एंड सैफरॉन, हाँ ये आपके पास भी है सही। तो ये जो है मेरा फेवरेट है। अब ये तो इस तरह का ब्लेंड है, मतलब समझ लीजिए इसका नशा है। रोज रात को तो ये लगाना ही लगाना है सोने से पहले, क्योंकि इस तरह का इसकी स्मेल, ये ब्लेंडिंग इस तरह से हुई कि मतलब अलग ही लेवल पे फील देता है ये बिल्कुल। मेरे हिसाब से। जो और ये ज्यादा मैंने नोटिस किया कि जो एज गैप है ये 35 के ऊपर वाली जो मेरी ऑडियंस है जो इसको ले रहे हैं उनके ऊपर होता है। और ज्यादातर ये लोग होते हैं जो मुझे जो फीडबैक देते हैं कि भाई देखिए हम इसको फजर में लगा के जाते हैं, हमारी सुबह की नमाज होती है वो, या फिर जो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम योगा वोगा में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मेडिटेशन के टाइम पे ये ज्यादा लगाते हैं इस तरह के तरफ। देन उसके बाद मुखल्लत इफ्तिखार, आपको शायद पता ही होगा, काफी जी, काफी अच्छा ऊद, रोज, मस्क, ब्लैक मस्क के ऊपर जैस्मिन, तो एक बहुत सा जैमी सा ऊद काइंड ऑफ एक ब्लेंड है, वो काफी अच्छा लगता है। देन इकोनॉमिकल रेंज में अगर आए तो हमारा मस्क फॉर मेन करके एक तरह है, मस्क फॉर वो मैन। काफी हाँ मस्क फॉर मेन वो व्हाइट मुझे मस्क, अच्छा लगता व्हाइट है। मस्क एम्बर है रोज, उसमें, व्हाइट मस्क है उसमें। हाँ व्हाइट मस्क है, व्हाइट मस्क एंड देन वो क्योंकि एक सिंथेटिक कंपाउंड है। जी। हाँ तो उसमें वो थोड़े सिंथेटिक्स नाम है, जैसे उसमें नॉर्मल ब्लेंड्स में क्या होता है कि आप नाम दे सकते हैं उनको कि सैफरॉन ये, सिंथेटिक्स में ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एंड देन एम्बर रोज, वो मेरा काफी अच्छा है, काफी ज्यादा हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी तक बोले तो कुछ 150 तोला तो हम लोगों ने उसको सेल कर दिया होगा, हाईएस्ट सेलिंग हम लोगों का वो है वो। एंड देन ये मुखल्लत हसन, एक स्वीट सा फ्रेग्रेंस है, स्वीट वनीला हनी, एंड देन उसके बैकग्राउंड में एक हिंदी ऊद का टच आता है। तो ये जो दोनों है ऑलमोस्ट हम लोगों ने 150-200 तोला के अराउंड हम लोगों ने सेल कर दिया इस तरह से, काफी अच्छी इनकी मतलब। जी जी। और आपका इस कौन सा फेवरेट है मेरे ब्रांड से? देखिए मुझे आपका मस्क हेवान काफी पसंद आया था। हाँ मस्क हेवान वो तो मुझे नेक्स्ट लेवल, वो उसके लिए बहुत अच्छा बहुत लगा। कैलिबर चाहिए। हाँ, लेकिन मतलब एज ए रिव्यूअर मुझको मतलब जो फीलिंग दे रहा था ना, वो बहुत ही हम्म बढ़िया दे रहा था। उसको जो डिकोड करने में जो मजा आ रहा था वो किसी चीज में नहीं आया, बहुत अच्छा था वो। हम्म। और मुखल्लत बस वो है अलीम कि का, उसको थोड़ा, हाँ उसको थोड़ा रिस्क पे लगाना पड़ता है आसपास देख के। हाँ मतलब वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं है। अगर आप उसको हाँ कॉम्प्लीमेंट के लिए लगाएंगे तो शायद जूतियां ही पड़ेंगी। मेरी वाइफ के सामने तो मैं लगा नहीं पाऊंगा। तो ज्यादातर लोगों का रिएक्शन ये होता है कि भाई मैंने लगाया था और कहीं से हाँ, आवाज आ रही कि ये क्या लगा लिया है इस तरह से। एक क्वेश्चन आया बहुत है सारे, भाई, एक भाई, कैन अत्तर्स गिव प्रोजेक्शन अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम, प्रोजेक्शन एज अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम, मतलब ये कह रहे हैं कि अत्तर्स जो हैं वो इतना प्रोजेक्ट कर सकते हैं जितना परफ्यूम्स करते हैं। आप ही आंसर कर दीजिए कर इसके ऊपर। कर सकते हैं। देखिए ये एक मिथ है कि परफ्यूम ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, इत्र करते नहीं है। मस्क हैवानी ले लीजिए आप, थोड़ा सा लगाइए, कम मेरे हिसाब से कम 10 फीट तक इसकी स्मेल जाती है। इसमें दो और ऐसे कॉन्सेप्ट कई है, सारे। इसमें दो हम्म कॉन्सेप्ट लगते हैं मुझे। एक तो अगर सिंथेटिक कंपाउंड है वो ज्यादा आगे जाता है, नेचुरल है, ठीक है। और नेचुरल के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे नोट्स हैं जो ज्यादा आगे जाते हैं। जो मस्त तो है, मस्त हाँ तो जैसे करेगा ही। मस्क हो गया, वो जाएगा करेक्ट, काफी आगे। करेक्ट। अब कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल साथ में चिपक के रहते हैं, जैसे कि संदल है, वो काफी चिपक के सैंडल रहता है। तो जी। ऐसा वो डिपेंड करता है तो कौन सा है, तो हो सकता है, पॉसिबल है। बट अतर का वो मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसको ज्यादा दूर जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक्चुअली में खुद इंजॉयमेंट के लिए, स्पेशली नेचुरल अतर्स। बट ये दोनों तरफ हैं, जैसे अभी बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो आपकी स्किन तक ही रह जाते हैं। जी जी। एंड देन ये भी डिपेंड करता है कि मतलब अक्सर ये भी होता है कि स्किन टू स्किन भी मैटर करते हैं। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जो किसी पर नहीं रुकते हैं और दूसरों पे बहुत ज्यादा रुकते हैं। बिल्कुल, स्किन केमिस्ट्री भी मैटर करती है। हाँ अभी जैसे मेरा खुद का एक परफ्यूम है मुंबई, मेरी स्किन पे वो ज्यादा ज्यादा 5 से 6 घंटे रहता है। लेकिन अभी मैंने एक बॉटल भेजी थी इनको, अंकुश सेठी भाई जो है उनको, मैंने चलन करके उनका नाम है उनके यूट्यूब चैनल का, उनकी स्किन पे वो 24 आवर्स रुका था। तो ये डिपेंड करता है स्किन टू स्किन भी। करेक्ट, करेक्ट। तो एक मेरा इस पे क्वेश्चन आया कि आप अपने जो अत्तर्स मुखल्लत है और ये परफ्यूम्स है खुद ब्लेंड करते हैं, इसमें आपका इनपुट क्या रहता है? कि आप ब्लेंड करते हैं कि आप क्रिएटिव डायरेक्टर का रोल अदा करते हैं? नहीं मैं वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छे से आता है। जैसे स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने, मैं बहुत छोटी टीम से स्टार्ट किया,
तो जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है वो मैंने अपने भाई को दी थी, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं सिर्फ अपने इनपुट्स देता हूँ परफ्यूमर्स को। इंडिया में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लोग मतलब इज्जत नहीं दे रहे हैं उनको, लेकिन यहाँ पे मतलब टैलेंट भरा पड़ा है। आप उनको बताओ तो क्या चाहिए आपको, और सेम चीज उतार के दे देते हैं। तो इस तरह का है। मैंने इंडिया में बहुत सारे हैं, कुछ लोग कन्नौज में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ मुंबई में हैं, और कुछ हमारे आसाम के हैं। तो इस तरह के हमारे पास कई सारे आर्टिस्ट हैं, और उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं, और जो हम लोगों को हिट करता है कि हाँ ये काम करेगा, तो वो हम लोग उनसे ले लेते हैं अच्छे साइज में। इस तरह से करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट मेरा डिफरेंट इसके अंदर मैं ब्लेंडिंग नहीं करता हूँ। अच्छा, आप ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, आप उसमें हाँ इनपुट देते हैं अपना कि मुझे इस टाइप का चाहिए, ये हाँ मार्केट में डिमांड है, और तो इस तरीके का बना दो, ऐसा बोलते हो आप? हाँ ऐसा बोलते हैं, जी जी, इस तरह का। करेक्ट करेक्ट। और यही मतलब एक ऑडियंस को बताना है कि हमारे यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया परफ्यूमर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जैसे आप लोग हाँ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आगे लाने का कि ब्लेंडिंग करें। और आपके हाउस की ब्लेंडिंग काफी अच्छी है फॉर नेचुरल परफ्यूम्स। जी, तो अब एक अलग चीज मैं बोलूंगा, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि मैंने देखा है कि आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है। और जो इंडियन अत्तर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब मैं जीरो बोलूंगा कि जीरो है, क्योंकि ना सेल्स आती है ना मार्केटिंग आती है। लेकिन वहां पर आपका हाउस जो है, जो मार्केटिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, आप रिव्यूअर्स को इन्वॉल्व करते हो। मुझे याद है आपने जब लॉन्च करने वाले थे उससे पहले ही मुझे थोड़े सैंपल्स भेजे थे टेस्ट करने के लिए, और मैंने आपसे फीडबैक शेयर करी थी, और वैसे ही आपने अलग रिव्यूअर्स के साथ भी करा था। तो ये जो स्ट्रेटेजी रिव्यूअर्स को यूज करने की है, ये इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, जो लोग अत्तर की वीडियोस देखते हैं या जो परफ्यूम्स की वीडियोस देखते हैं, मैं उन्हीं फेसेस को लाना चाहता था, राइट। जैसा आपने बोला कि दूसरे हाउसेस मार्केटिंग नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसका आइडिया कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट लाइन है, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, आप क्यों नहीं कर रहे। मैं बताता हूँ आपको, मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं लोगों को सिखाने की आदत है। ऐसा नहीं कि मतलब खुद जान गए तो अभी चुपचाप खुद ही के लिए करेंगे। मैं दूसरे ब्रांड्स को ये भी बोलूंगा कि कंटेंट लिख के दिया है कि आपको ईमेल कैसे लिखना है इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करने के लिए। पूरा का पूरा वो डिजाइन करके कौन करके देता है? मैंने करके दिया है कि आप इस तरह का ईमेल भेजिए, यहाँ पे इनका नाम चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो चेंजेस करने, इस तरह का करके दिया, लेकिन लोगों को नहीं करना है। अब देखिए, जैसे मार्केटिंग की बात हुई कि रिव्यूअर्स को क्यों मैं लाता हूँ। देखिए, ये जब मैं किसी को अप्रोच करता हूँ, जैसे आपको भी अप्रोच करता हूँ, तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हो जाती है कि हाँ एक ब्रांड है जो इस तरह का अप्रोच ला रहा है कि सब मिलके एक साथ बढ़ेंगे। जैसे मैं भी अगर आपको ला रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आपकी तरफ भी थोड़ी बहुत ऑडियंस जा रही है जी और आपका भी जो इन्फ्लुएंस है मुझे मिल रहा है। जी, ठीक है, तो इसलिए मैं रिव्यूअर्स को इन्फ्लुएंसर बुलाता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को पुश किया कि आप भी यूट्यूब पे आइए, वीडियोस बनाइए इस तरह से। तो ये सारी चीजें हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम अभी लग रही है मुझे कि मैं ज्यादा जाता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ। मैं डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्ट्स बहुत कम चला रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम ऑडियंस को इसके बारे में बताएं, देन अगर उनका इंटरेस्ट है तो ले लें। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मेरे अभी 25K सब्सक्राइबर है, राइट, और मैं एज अ रिव्यूअर बात कर रहा हूँ, और अगर मुझे सामने से एक ब्रांड अप्रोच करता है कि आपको ये परफ्यूम के बारे में बात करना, हमारी ये लाइन है और आप हमारे बारे में वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि 25,000 सब्सक्राइबर ओवरनाइट आ गए, राइट। 50,000 का कैमरा लगाया है, 10,000 की लाइट लगाई है, पीछे अच्छा खासा पैसा खर्चा किया है, तो ये कौन पे करेगा? अगर आपको मैं इन द एंड एक ना एक दिन आपके हाउस के बारे में बात करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, राइट। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप मेरा टाइम लो, तो मैं उसके चार्ज करूंगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर, और देखिए, आपने जितना सेटअप पे खर्चा किया, अराउंड मुझे लगता है 3-4 लाख रुपीज तो सिर्फ सेटअप पे डाल दिया आपने, ठीक है। देन आपका इतना एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस परफ्यूम टीम, ठीक है। तो अगर आपको कोई ब्रांड आके बोलते तो आप उसके चार्ज करोगे कि नहीं? बनता है कि नहीं बनता है? देखिए, अभी तक तो मेरा मैंने जो किया नहीं है, अभी तक तो किया नहीं है, हाँ, लेकिन करना चाहिए मुझको। करना चाहिए। अब देखिए, मैं जब किसी को भी अप्रोच करता हूँ तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आई एम हैप्पी टू पे। क्यों? क्योंकि मैं आपका इन्फ्लुएंस, आपका टाइम ले रहा हूँ और आपका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, ठीक है। और इंडिया में
अभी तक का कोई ब्रांड जो है जो परफ्यूम और इत्र में काम करता है, किसी ने किसी को पे नहीं किया, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है। क्योंकि आपने कई सारे परफ्यूम हाउस की वीडियो बनाई होंगी और आपको मैसेजेस भी आएंगे कि भाई सोल्ड आउट हो गया हमारा। जी। आपको क्या मिला इन द एंड? जीरो, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो तो आपको भी था कि कॉस्ट ऑफ परफ्यूम क्या होती है, कॉस्ट ऑफ बॉटल क्या होती है, जी बट आपको मिलना चाहिए, राइट? जी बिल्कुल। तो ये इस तरह का मेरा थॉट प्रोसेस है कि देखिए, अगर मैं किसी का एक्सपीरियंस टाइम ले रहा हूँ तो मुझे उसको पे करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो अप्रोच करता हूँ किसी को, तो कि देखिए मेरा ये प्रोसेस है, आपको अगर चाहिए तो आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग इनएक्सपीरियंस होते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं इतनी चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम फ्री में कर देंगे। देखिए इसके अंदर मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे हिसाब से देखिए रिव्यूअर को तो रिव्यू ऑनेस्ट बनाना चाहिए, ठीक है। जो आपको फीलिंग आती है आप उसको बता दो, चाहे हाँ उसके लिए पेड हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। हाँ, वो देखिए वो कंटेंट पे तो मेरे हिसाब से कंट्रोल सिर्फ आपका ही होना चाहिए कि क्या बिल्कुल जाना है, वो तो आपको ही होना चाहिए। वो तो रिव्यूअर के ऊपर है कि क्या जाना चाहिए कंटेंट पे, बट ये अब ऑनेस्ट हो वो ज्यादा जरूरी है। एंड करेक्ट। उसके लिए पैसे मिले हो चाहे ना मिले हो। हाँ, और उसके पीछे क्या मिला है, फ्री बोतल मिली है या पैसे मिले हैं या मैंने खुद खरीदा है, ये ऑडियंस को इसका मतलब नहीं होना चाहिए। ऑडियंस को बोलना अब चाहिए देखिए एज। इसमें, हाँ इसमें एक चीज और भी ये भी है कि आपने देखिए कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने डिसाइड किया कि अब मुझे हंस की वीडियो बनानी है, राइट? जी आपने कितना रिसर्च किया? कम से कम आपने टॉक बहुत। टाइम ही मेरे हिसाब से 3-4 घंटे लोगों से बात करी होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपका बीच में मन किया होगा कि आज मैं जो है सफारी का, सॉरी इसका अब्दुल समद अल कुरैशी का सफारी एक्सट्रीम लगाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको टेस्टिंग करनी है रूह हंस की। तो बिल्कुल बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी इसमें होते हैं बिल्कुल। कि आप एक पर्टिकुलर इतर लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे परफ्यूम का रिव्यू करने वाले। तो ये जो सैक्रिफाइसेस हैं हम इन्फ्लुएंसर की कहीं ना निग्लेक्ट कर देते हैं। वो जो इज्जत वाला, रिस्पेक्ट वाला पार्ट है ना, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि, और ऑडियंस का भी देखिए, पहले क्या होता था कि लोग थोड़ा सा उस तरह के बोलते थे कि अरे ये पेड कंटेंट है ऐसे करके। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, इस जो परफ्यूम जो रिव्यूअर की कम्युनिटी, इसमें इंडिया में सबसे बड़े कौन है? परफ्यूम गुरु। आज तक किसी ब्रांड ने उनको पे तक नहीं किया। और लोग, और जबरदस्त गालियां खाई उन्होंने किस बात पे कि बिक गए आप और इस तरह का। इंडिया में कोई ऐसा ब्रांड ही नहीं है जो पे कर पाए, लेकिन मजे सबको लेने हैं। क्योंकि मुझे, हम कन्वर्जन तो हमें पता है ना, कि आज जैसे आपने अगर वीडियो बनाई तो वो तो हमें पता है ना कितना कन्वर्जन आ रहा है। तो इस तरह के लेबल तो लगेंगे ही, बट आपको क्या करना, काम करना है। एक्लेक्टिक सेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने 3 परफ्यूमर्स कुड नॉट टेक द ऑनेस्टी एंड ब्लॉक मी। देखिए अगर कोई हाउस आपकी ऑनेस्टी को नहीं सह पाता ना, तो उससे बात ही मत करो, राइट। अगर हाँ सीधा। आप मुझे 20 सैंपल भेजोगे और अगर मैं ये बोल दूं कि 20 के 20 बहुत बढ़िया है, तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। मेरे हिसाब से 20 में से मुश्किल से 4-5 अच्छे होंगे, 15 बेकार होंगे। तो ये हाँ ऑनेस्टी। अब इसमें इसमें जैसे दो चीजें आ जाती हैं। मुझे भी पहले, जब मैं एज अ रिव्यूअर साइड से जब मैं बात करता था, तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगता था। लेकिन जब से मैं एक परफ्यूम हाउस का ओनर हूँ, तब मुझे ये दूसरी एक साइड समझ में आई है कि ऑनलाइन जाने से पहले आप जिस बंदे ने आपको भेजा है उससे बात कर लें, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। जैसे मस्क हैवान है, अभी मैं किसी एक नॉर्मल बंदे को भेज दूं तो वो यही कहेगा ना कि ये क्या चीज है, ये सही नहीं है और ये इतना अच्छा नहीं है। बट आपको जब मैंने इंसाइट दे दिया कि देखिए ये उन लोगों के लिए है जो चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, बिल्कुल, जिनको नॉर्मल अभी ब्लेंड से वो थक चुके हैं, अब उनको कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। जी तब आपको ये, तब आप जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो कुछ वो दूसरा, तो ये भी चीजें होती हैं बहुत सारी कि, और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो रिव्यूअर हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती बोलने में, तो बोल कुछ और होते हैं और वो कुछ और ही लोग समझ लेते हैं। तो ये भी होता है। और वाकई में ये ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ ऑनेस्टली बोल दिया है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें क्या है, इतना भी क्या वो लेने का कि मतलब लोगों को ब्लॉक ही करना है। बिल्कुल। और मतलब इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक जो हाउस होता है उसको ऑनेस्टी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और रिव्यूअर को ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि फ्राइडे को उनको बॉटल आई और सैटरडे को उन्होंने रिव्यू बना दिया। अरे भाई, वो तुम कैसे कर सकते हो? अगर फ्राइडे को तुम्हारे पास कोई चीज आई हो और तुम सैटरडे को उसका रिव्यू बना दोगे,
टाइम लगता है रिव्यू बनाने में, और हाउस का भी एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भैया फ्राइडे को अगर परफ्यूम भेजिए ना, सैटरडे को तू बोल दे कि ये दुनिया का बेस्ट परफ्यूम है। अरे हाँ हाँ, कैसे, ये ये थोड़ी, चीज है, ये टाइम देखो, टाइम तो नहीं अलाउ करने लोग, ये तो हाँ है। टाइम अलाउ करना चाहिए। और मुझे तो रोज एटलीस्ट 2-3 मेल्स आती है कि ये हमारा रिव्यू कर दो। क्लियर कट उसमें मैंने लिखा हम्म, हुआ है कि भैया मैं रिव्यू तब करूंगा अगर मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो मत भेजो आप मुझे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट सही है। है। क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है रखने की, इतने ज्यादा परफ्यूम्स हो चुके हैं मेरे पास। हाँ, ये चीज तो है। करेक्ट करेक्ट। तो अब इसके ऊपर हम एक गिव वे करें, इस टाइम के ऊपर लेट्स डू वन गिव वे। हाँ, कर सकते हैं। तो आप किस चीज का गिव वे, अतर का गिव वे करें? करिए। तो आप क्वेश्चन पूछिए कुछ, जो ऑडियंस पहले आंसर करेगी उसको हम ये गिव वे देंगे, ये डायरेक्ट आप शिप कर देंगे अपनी तरफ से, और जो आपको सही हम्म, आंसर लगेगा और जो पहले आंसर करेगा। किस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं भाई? आप अपने हाउस के बारे में कर लीजिए, कोई अत्तर के बारे में कर लीजिए, जैसे आपको करना चाहें। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हसनूद कब लॉन्च हुआ था? किस महीने की एग्जैक्ट, किस डेट में लॉन्च हुआ था? हाँ किस हाँ, महीने एग्जैक्ट। किस डेट पे, एग्जैक्ट डेट। हाँ, तो चलिए वेट करते हैं कौन जाके चेक करेगा। और क्या हम इसमें गिव वे कर रहे हैं? इसमें हम लोग दे रहे हैं मुखल्लत इफ्तिखार। मुखल्लत ये इफ्तिकार, बहुत ही बढ़िया अत्तर है। नवंबर 2020 बोल रहे हैं, डेट डेट भी बतानी पड़ेगी। डेट डेट बताइए, डेट। डेट भी बतानी भाई, उन्होंने डेट बताइए। ये अच्छा है। तो फ्रैग फॉर ऑल नवंबर 2020 बोल रहे हैं, लेकिन डेट भी बतानी पड़ेगी। नवंबर में पिछले साल नहीं, डेट बताओ। 8 नवंबर है क्या आंसर? अच्छा, सब नवंबर तो समझ गए हैं, डेट कोई नहीं बता पा रहा। 8 नवंबर बोल रहे हैं, 8 नवंबर। इमरान भाई भी नवंबर 2020 बोल रहे हैं। डेट बतानी पड़ेगी दोस्तों, डेट बतानी पड़ेगी। और 21 फरवरी, 8 नवंबर, 8 नवंबर, दिसंबर 2020 नहीं, डेट बतानी पड़ेगी, मंथ बताना पड़ेगा, ईयर बताना पड़ेगा। 7 नवंबर बोला किसी ने। हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये कौन है, इनको लॉक कर दीजिए। ये है शोभित 1415। 7 नवंबर बोला, उसके बाद फ्रैग फॉर ऑल का आया, तो हाँ, शोभित विनर हो गए। शोभित जी को बहुत सारी मुबारकबाद। बहुत सारी मुबारकबाद। तो शोभित जी, आपने मुखल्लत इफ्तिकार जीत लिया है, बहुत ही बढ़िया अत्तर है और बढ़िया प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन देखिए जरा, और अत्तर जी भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही मेरा वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम दिस हाउस। टॉप 5 में 100% आएगा। तो अब हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं। आपने पहले अत्तर लॉन्च किया, उसके बाद आपने परफ्यूम लाइन भी लॉन्च करी, तो जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने इसमें इंस्पिरेशंस जो ली वो इंडिया की सिटीज थी, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसे इंस्पिरेशन आई, कैसे ब्लेंडिंग करी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो देखिए, अभी बहुत सारे जो थॉट जो स्टार्ट हुआ था वो लखनऊ से ही हुआ था। तो इनिशियल जैसे मैं फ्रेग्रेंस एक स्मेल कर रहा हूँ, और जो मेरी मेमोरी है सिटी के साथ, या फिर जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, जो सारी चीजें हैं उनको एसोसिएट करता हूँ परफ्यूम्स के साथ, राइट। तो जैसे जब परफ्यूम आया मेरे पास, एक कसोल, ठीक है, उसका कभी तो कुछ दूसरा नाम था, उसका कोड भी नाम होता है। एंड देन आई स्मेल्ड इट कि ये कैसा है। तो वो ना बहुत ज्यादा हेवी एक कैनबिस बेस्ड फ्रेग्रेंस था, बहुत ज्यादा हेवी। तो वो एक्चुअली वेरेबल नहीं था। तो फिर मैंने अपने परफ्यूमर को बोला कि इसको थोड़ा सा जो है आप सैंडलवुड के साथ बिठाओ अच्छे से। तो उन्होंने काफी अच्छे से फिर सैंडलवुड के साथ बिठाया, तो वो अभी काफी वेरेबल हो गया। एंड जो कसोल के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है लोगों का, तो आपको पता ही है कि किस लिए वो जुड़ा हुआ है। एंड कैनबिस बेस्ड का फ्रेग्रेंसेस की आप नोटिस करेंगे कि वो बहुत ज्यादा वेरेबल नहीं होते। मतलब इस तरह के आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि नासो मोटो का हमने वो लगाया और क्लब से फेंक दिए गए बाहर, सिर्फ 17 स्प्रे तो लगाए थे। तो ये तो कसोल के साथ ये है कि आप 3-4 स्प्रे लगाइए और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, स्किन के साथ चिपक जाता है, कुछ 14-15 घंटे तो स्किन पे ही रहता है। एंड देन फैब्रिक पे तो जब तक आप नहीं धुलो तब तक ही रहेगा। तो कसोल के साथ मेरा ये आइडिया था। देन कुछ फ्रेग्रेंस जो हमने लॉन्च ही नहीं किया, जैसे कानपुर। तो कानपुर के साथ ये प्लान था कि विल मेक द बेस्ट लेदर फ्रेग्रेंस इन दिस इंडस्ट्री, कि कुछ ऐसा लेदर के ऊपर हो, क्योंकि कानपुर जो है वो हमारा लेदर के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है। और क्योंकि मेरी अच्छी खासी ऑडियंस इंटरनेशनल भी है, तो उनको भी बताया जाए कि यही क्या चल रहा है इंडिया में।
इस तरह की चीजें। अब आप नोटिस करेंगे कि बाहर के हाउस आते हैं और फ्रेग्रेंस का नाम ताजमहल, शालीमार, ये सब रख के चले जाते हैं। इंडिया वाले नाम क्या रख रहे हैं, बुर्जुल फलाना और ये ऐसे करके, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का। तो ये तो बिल्कुल मतलब आपने आप, भी हाँ, देसी स्टाइल में बट फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस। नहीं ये मुझे आपका कॉन्सेप्ट काफी काफी अच्छा लगा था कि आपने अपने सिटीज के हिसाब से रखा। जैसे दिल्ली का आपने ओल्ड दिल्ली का चार्म देने की कोशिश करी, हाँ और आपने कहते हैं जैसे कानपुर में बताया आप लेदर का बना रहे थे, वो शायद लॉन्च नहीं हो पाया। और हैदराबाद में आपने कुछ एक सर्टन सेट दिया, हाँ, गोवा में सेकेंड हैदराबाद में सेट दिया। आप अगर क्लोजली स्मेल करोगे तो आपको एक स्मेल आएगी ऑलमोस्ट एज अ हुक्का की स्मेल। और आपको तो पता ही है हैदराबाद में किस लेवल पे हुक्का चलता है। तो उसका जी भी जी। एक ऊद एंड रोज का ब्लेंड है उसके साथ। जी जी। हम्म। तो तो इस तरह का मेरे जो एसोसिएशन है उसके हैदराबाद के साथ इस तरह से। हम्म, तो इसके अंदर जो आपने मतलब जो इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, ये नेचुरल हैं, कंपाउंडेड है, मिक्स है, क्या चीज पे? एक तो ब्लेंड तो आपने सिटी से इंस्पायर कर लिया, ये थोड़ा इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताइए। देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारे हाउसेस हैं जो बोलने में जरा सा भी ये झिझकते नहीं है कि दिस इज 100% नेचुरल। हम्म ठीक है, फिर आप उनकी कॉस्ट देखते हो तो ये दोनों चीज मैच ही नहीं करती। हम्म और मेरा तो इन सब चीजों में ये है कि अगर अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर आप क्यों हो? आपने तो बोल दिया 100% नेचुरल। नेचुरल ब्लेंड अगर मैं बात करूं, आपको इत्र की बात करता हूं, अगर ऊद का, संदल का, आपको तो आइडिया होगा ही कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट क्या होती है। आपको इन जनरल मार्केट में ऊद जो है, हम्म जो एक स्टैंडर्ड लेवल का ऊद मिलेगा वो कम से कम 15,000 रुपए का तोला मिलेगा। ठीक है, हम्म अगर आप उससे एक ब्लेंड बना रहे हो हम्म और देन आपका प्रॉफिट ऐसे है, तो मेरे हिसाब से कम 30-40 हजार रुपए तोला जाएगा, तभी वो 100% नेचुरल होगा, वरना वो नहीं होगा। हम्म तो मेरा जो मैं जो कहता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ उसमें कुछ नेचुरल होता है, कुछ सिंथेटिक होता है। तो सिंथेटिक एंड हाई एंड जो उनके नेचुरल एंड हाई एंड जो सिंथेटिक उनके सब्सटीट्यूट होते हैं वो हम यूज करते हैं, हम्म क्योंकि हमें थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना है। हाँ, हम्म अगर हमें इंडियन ऑडियंस अलाउ करती है कि आप हम्म बनाइए अपने फुल फ्लेज में, और इन दी एंड हम लोग करेंगे भी ऐसा, हम्म तो 100% नेचुरल भी जाएंगे। और कहीं कहीं जरूरत भी होती है। अब जैसे मुखल्लत इफ्तिखार हो गया, अब उसके अंदर मस्क का नोट है, हम्म। नेचुरल नहीं यूज कर सकते क्योंकि इंडिया में बैन है। इस तरह एक्चुअल से। में इसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस ये है कि जो ब्रांड बोलते हैं ना कि 100% नेचुरल है, वो झूठ बोल रहे हैं। ऑब्वियसली बात एक्चुअल में 100% नेचुरल कभी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। नहीं हो आपको सकती। फिक्सेटिव यूज करने पड़ते हैं, और कुछ कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो कि सिर्फ सिंथेटिक कंपाउंडेड में ही मिलते हैं, नेचुरल में जी। मिलते ही नहीं है। तो हम्म। ये कहना कि मैं हर एक चीज 100% नेचुरल बना दूंगा, ये थोड़ा झूठ हो जाता है। आप 99% बना सकते हो, 98% बना सकते हो, 100% कभी नहीं बना सकते। हाँ, और जैसे लोग मतलब कि, क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि जैसे मैंने बोला कि मुखल्लत अल हिंद है, इसके अंदर ऊद है, रोज है, सैफरन है और ये है। ठीक है, तो आप मिलाइए चारों और देखिए फिर आ रही क्या मुखल्लत उसकी स्मेल? बिल्कुल नहीं आएंगे, राइट? तो नहीं ये नहीं है। एक किस तरह का समझ लीजिए कुछ गेम होता है जो सिर्फ परफ्यूमर्स को ही आइडिया होता है, और जो हाउस ओनर्स हैं उनको, क्योंकि करेक्ट। इन सब चीजों की नॉलेज होती इसको फिक्सेटिव बोलते हैं, इसकी नॉलेज, है। इसकी हाँ। मतलब टर्मिनोलॉजी में फिक्सेटिव यूज करने पड़ते हैं, जो हम्म। फिक्स करते हैं नेचुरल चीजों को। तो जी। ये कहना कि 100, एक मुझे याद है कि मैं तो नाम ले लूंगा, दुआ ने बोला था। अब दुआ स्टार्टिंग में आया था ना 4-5 साल पहले, तो दुआ जो क्लोन वगैरह बनाता है, वो बोलता है कि 100% नेचुरल है। तो मैंने पूछा कि भैया 100% नेचुरल कैसे हो सकता है? ये एक पर्टिकुलर नोट उसने लिखा हुआ था, वो नोट सिर्फ कंपाउंडेड में ही मिलता था, वो नेचुरल में मिलता ही नहीं था। तो हाँ। आप ये क्लेम करना कि 100% नेचुरल है, झूठ होता है मेरे हिसाब से। हाँ, कंप्लीट। और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए इस तरह का, या फिर अगर कर रहे हैं तो फिर इस तरह का फिर कॉस्टिंग बिठाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया है पर मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, वो बोल रहे हैं कि भाई अगर एक ब्लाइंड बाय करना हो तो कौन सा ब्लाइंड बाय करें? कहाँ अगर से? आप जो आपकी परफ्यूम लाइन है उसमें से अगर एक ब्लाइंड बाय करना हो जो कि सबसे सेफेस्ट है, सबसे सेफ परफ्यूम है, तो कौन सा होगा? गोवा एंड बैंगलोर। गोवा ये एंड मेरे बैंगलोर। हिसाब, हाँ, ये ज्यादातर लोगों को इसमें नॉन ऑफेंसिव, मतलब ये किसी को भी पसंद आएगा अच्छा।
इस तरह से। Eclectic Scent बोल रहे हैं कि I am not sure I agree with that 100% natural will not give you longevity and projection। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि 100% नेचुरल कभी प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी नहीं देते हैं, आपको फिक्सेटिव यूज करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में हम एग्री कर रहे हैं जो आप अपना पॉइंट बोल रहे हैं। तो अगर आपके हम परफ्यूम लाइन में से करें तो आपके टॉप 3 कौन से हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है उसमें से एक है कसोल। कसोल, वो मेरा हाँ का मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हैदराबाद, हैदराबाद, हाँ कसोल, हैदराबाद एंड गोवा। ओके, जी। करेक्ट। और भी मतलब जाहिर सी बात है सारे तो वही हैं, बट ये कि टॉप ऑफ द लाइन यही है इस तरह से। और सबसे सेलिंग कौन सा है? ये तो आपके फेवरेट हो गए, सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग कौन से हैं 3? हॉट सेलिंग में केरला है जो कि सोल्ड आउट हो गया अभी जल्दी कुछ दिन पहले, एंड गोवा जा रहा है, काफी अच्छा निकल रहा है। मैसूर सोल्ड आउट हो गया हमारा। मुंबई जो है काफी एक बार सोल्ड आउट हुआ, दूसरा भी हम लोग दूसरा बैच लेके आए हैं। एंड हैदराबाद जो है वो काफी अच्छे से निकल रहा है। लास्ट के मेरे हिसाब से 2 या 3 बॉटल्स बची हुई इस तरह से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो निकल तो ऑलमोस्ट स्पीड जो है सबकी अच्छी है, क्योंकि लोगों को सबको एक्सपीरियंस करना, और हम लोग क्या है कि मतलब सैंपल सेट भी अवेलेबल कराते हैं ना, तो लोगों को ऐसा ब्लाइंड बाई करने की जरूरत नहीं है। आप पहले सैंपल लगाइए। मेरी खुद की भी वो आदत है कि सैंपल्स बहुत जरूरी है, पहले आप कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपना इतना कीमती पैसा जो है 4,000-5,000 रुपए दे दें, एंड देन आपको रिग्रेट हो, कह रही है मैंने क्या खरीद लिया। तो अब इससे अच्छा है कि पहले आप सैंपल ले लीजिए। सैंपल अगर आपको अच्छा लगता है फिर ही आप इसको परचेज करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। तो आपने कोई इस पे डिस्कवरी सेट बनाया है जो लोग ट्राई कर सकते हैं और हाँ, आपके ये हम मतलब? लोगों ने इन्हें स्टार्टिंग से ही करा है कि हर फ्रेग्रेंस का 1 ml का इत्र का जो है 1 ml का सैंपल अवेलेबल कराया था स्टार्टिंग से हर फ्रेग्रेंस का। एंड परफ्यूम्स में 2 ml के सैंपल्स। आई थिंक 2 ml जो है इनफ हो जाता है आपको एक बार आइडिया लगाने में कि आपके लेवल का है, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से। और इसका प्राइस रेंज क्या है? आपने डिस्कवरी सेट जो रखा है किस प्राइस रेंज में रखा है आपने? जो परफ्यूम्स का है उसमें 10 सैंपल्स हमारे परफ्यूम्स के 2000 रुपीज है, और इसमें अच्छा आपको 20 ml परफ्यूम मिलता है। 10 वेरिएंट्स हैं हमारे उसके। अच्छा और अच्छा जो अच्छा बाकी अच्छा। जो हमारे इत्र हैं उनका इस तरह से है कि जो 1 ml का जो कॉस्टिंग आता है हम सिर्फ उसी को चार्ज करते हैं नॉर्मली। बाकी जैसे मस्क रोज हो गया जो हमारा सबसे सस्ता फ्रेग्रेंस है, 899 में है, तो उसका जो सैंपल है वो 99 रुपीज का 1 ml आ जाता है। तो रादर कर देन कि आप 900 रुपए अपना खर्चा करें, आप 100 रुपए में ये ले सकते हैं। 2-3 सैंपल और ले लीजिए, आपको जो पसंद हो वो आप बाद में ऑर्डर करिए। कुछ भी नहीं पसंद है तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। और मुझे लगता है कि नीश परफ्यूमर में सैम्पलिंग करना चाहिए, स्पेशली अगर आप न्यूबी हो तो ये आप अगर सैंपल जी करोगे तो इजी रहता है आपके लिए, वरना आपको लगेगा यार मैंने क्या लगा लिया, मैं तो यूज्ड टू न्यू चीज के। बिल्कुल। जी। तो अब हसन वुड ब्रांड के नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में? क्या नई चीज ला रहे हैं? क्या आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है? तो प्लान्स तो बहुत हैं। जो अभी काफी नियर फ्यूचर में आ रहा है वो कुछ अफोर्डेबल फ्रेग्रेंसेस ला रहे हैं हम लोग, जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। देन उसके बाद हम लोग Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे बहुत जल्दी जाने वाले हैं। मतलब मुझे लगता है कि विद इन 2 वीक्स विल बी ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, तो उससे शिपिंग हमारी काफी फास्ट हो जाएगी। और उसके बाद का जो प्लान है नवंबर में हम लोग अपने आर्टिजनल ऊद के साथ आ रहे हैं, खुद आर्टिसनल की उसके ला डिस्टिलिंग के रहे साथ। हाँ, हैं? अच्छा। क्योंकि वही ऑनेस्टी वाली प्रॉब्लम, ये आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कम से कम 50-60 सैंपल आए होंगे ऊद के, और मैंने बहुत सारे इधर उधर से टेस्टिंग कराई, समवेयर कहीं ना कहीं वो डाइल्यूशन के शिकार हो चुके हैं। तो अब ये आ गया कि भाई खुद का ही डिस्टिल करो, तो ये कहाँ पे क्योंकि डिस्टिल हम लोग कर रहे हैं नवंबर आप? में करना। ये कहाँ पे डिस्टिलेशन करवा रहे हैं ये आप? ये आसाम में करेंगे, और ये इसका मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। जी। तो और ये इनका तो मैं सारी चीजों का, इवन जो हमारा रूह खस है उसकी भी हम डिस्टिलेशन की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। संदल की भी दिखाएंगे, वो भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अभी। काफी यूनिक बॉटल है, आपको हम दिखाएंगे किस तरह की बॉटल है वो। मतलब अभी तक की मुझे लगता है संदल की इससे यूनिक बॉटल कभी नहीं आई होगी। बढ़िया बढ़िया। आपने ये मेरा प्रॉमिस है। और जैसे आपको पता है कि प्रेजेंटेशन में हमारा जी जी ये बहुत यूनिक थी ये। जी। तो इसके एंड ऊपर उसके बाद फिर यही सब सारे प्लान्स हैं। जी,
तो मैं एक मेरा एक इन द एंड एक जो प्लान है कि मतलब इसको जितनी जल्दी हो सके एग्जीक्यूट करना है। एक इंडियन ट्रेजर करके मेरा एक फ्रेग्रेंस है, बट उसको एक्चुअली वो बहुत बड़े लेवल पे मुझे करना है, लॉन्च करना है उसका। मैं आपको उसका फ्रेग्रेंस जो है वो फाइनलाइज हो गया है, बट ये है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट चीजें जो है उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ रही है, बस फोन्स पे फोन्स चल रहे हैं अभी तो कि कहाँ से क्या 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 करना है जी। तो एक चीज मतलब मैं आपकी खस पे ही पूछ लेता हूँ कि ये खस जो आपकी थी ये 2000 पे तोला है, राइट? ये जो खस है आपकी, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि खस में क्या स्पेशलिटी है आपकी खस में, क्योंकि समर का टाइम चल रहा है, लोग खस लगाते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि लोग 2000 पे क्यों खर्च करें आपकी खस के ऊपर। जी। तो एक देखिए, एक अगर आप रूह खस लेने जाएंगे, प्योर 100% प्योर लेने जाएंगे, तो मार्केट का जो रेट है वो अराउंड 1400 टू 2000 रुपीज जाता है। अब कुछ लोग थोड़ा और भी महंगा बेचते हैं इसको, बट क्योंकि मुझे जिस प्राइस पे पड़ रहा है, जिस पे मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इस तरह से सेल कर रहा हूँ। देखिए मेरे खस के साथ जैसे लोग बोलते हैं कि आप कुप्पी उप्पी लगा रहे हो इसलिए थोड़ा सा 200-300 रुपए ज्यादा ले रहे हो, इसका नहीं है, ये इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं सेल करता हूँ अपनी वेबसाइट पे, राइट? अब इसमें देना होता है मुझे 18% जीएसटी, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 400 रुपीज चला गया जीएसटी का। देन आज तक मैंने किसी से शिपिंग का जो चार्जेस है नहीं लिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप इतना बड़ा बॉक्स भेजने जाएंगे तो 60 रुपीज टू 100 रुपीज इसकी शिपिंग हो जाती है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बेचना होता या किसी दूसरे चैनल के थ्रू बेचना होता जिसमें जीएसटी ना इन्वॉल्व करते हम, तो ये मुझे 1400 रुपए का पड़ता, तो मैं भी 1400 रुपए में बेच देता। बट क्या है कि अब मुझे इन सब चीजों में ध्यान ही नहीं देना है कि मुझे जीएसटी कैसे बचानी है और ये सब कैसे करना है। देखिए मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि अगर मुझे कॉफी पसंद है, राइट, और मेरे पास पैसे नहीं, तो ऐसा नहीं कि मैं कॉफी कट कर दूंगा, मैं काम करूंगा ताकि मेरी दिन की 2 कॉफी पूरी हो जाए, राइट? हमें कर्व ही क्यों करना है? तो मैं इन सब चीजों में ध्यान ही नहीं देता कि जीएसटी कैसे बचानी, लाइट का बिल कैसे बचाना है, ये कैसे बचाना है, और कहाँ से कट करें तो क्या बचाना है। नहीं, हम इतना काम करेंगे कि हमें ये सब कट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, इस तरह से। और तो, अगर हो सकता है फ्यूचर में इसकी प्राइसेस जो है और स्लैश हो जाए चीजों के लेके, तो हम धीरे धीरे इसके ऊपर काम तो करें। बेसिकली आप ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि जनरली अगर ग्रे मार्केट में आप डील करो तो आप जीएसटी सेव कर सकते हो, क्योंकि आप ग्रे मार्केट में डील नहीं करते हो तो प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि आप नॉन ग्रे मार्केट में बेच रहे हो, आप रेगुलर मार्केट में बेच रहे हो, आप व्हाइट मार्केट में बेच रहे हो, तो ये रीजन है अब उसका, हाँ, अब इसका 18% ऑलमोस्ट जीएसटी, जो कि 400 रुपीज बन जाता है, अप्रोक्सीमेटली 380 समथिंग रुपीज, ऐसे करके। तो आपने एक और चीज बताई थी कि आप कहते हैं ये लॉन्च कर रहे हो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, और किसी प्लेटफॉर्म पे भी लेके आ रहे हो उसको? हाँ, और अभी हम लोग बहुत ही रिसेंट कुछ 15 अगस्त को हम लोग इसको perfumery.co.in पे इसको लॉन्च कर रहे हैं, perfumologist.com पे, जो कि मोहित खत्री ओन करते हैं। उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन होने वाला है जी। अच्छा, तो मोहित खत्री को शायद कॉल पे लेके आए, उनसे भी बात करते हैं कि क्या हिसाब अच्छा है क्या, वो कॉल पे है क्या? चेक करते हैं जी कि जी, है कि लाइए। नहीं है। अगर मोहित खत्री कॉल पे है तो होंगे, शायद होंगे मेरे हिसाब से। परफ्यूमोलॉजिस्ट इनवाइट किया है, देखो अगर वो भी आ जाए तो उनसे बात करते हैं कि उनके क्या थॉट है इसके बारे में। उनका तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स में, और खासतौर से परफ्यूम्स में, क्योंकि जो नंबर्स वो कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग। मतलब मुझे नहीं लगता कि 100 ब्रांड्स को मिला लेंगे इंडिया में और अकेले। आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। आई थिंक वो तो अवेलेबल ये, नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। हाँ शायद नहीं होगी। तो हाँ, तो उनका कोई जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस इन सब चीजों में, ई कॉमर्स पे, करेक्ट। आई स्पेशली थिंक जो परफ्यूम से रिलेटेड है जी। मोहित का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्स, काफी बढ़िया सेल्समैन है वो, तो उनके जी जी। प्लेटफॉर्म पे जाना काफी बढ़िया चीज है। और मैं उनको नेक्स्ट हफ्ते इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, तो उनसे मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम ओके। अपना गिव वे करते हैं, एक परफ्यूम का भी गिव वे भी कर देते हैं, क्या बोलते हो हाँ, आप? तो ये क्वेश्चन जो है आप पूछिए, आप अपने रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि
मैंने अपना जो चैनल था इंटेलेक्चुअल सेंस किस डेट पे लॉन्च किया था, किस ईयर किस डेट पे लॉन्च किया था? सही है। आपके जैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया मैंने भी। So, मेरा जो इंटेलेक्चुअल सेंस यूट्यूब चैनल है, कब मैंने लॉन्च किया था, किस डेट के ऊपर, और इसको गोवा मिलेगा। गोवा गोवा कर रहे हैं हम, गोवा की कर रहे हैं जी गिवे। गोवा गोवा गोवा। चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे पहले। वेरी टफ क्वेश्चन। देखिए टफ क्वेश्चन है, इतना बढ़िया परफ्यूम आपको मिल नहीं, रहा है। लेकिन जो फैंस है उनको आइडिया है कि कब लॉन्च हुआ था, कब नहीं लॉन्च हुआ था। जी, ये ऋषभ जी ने पकड़ लिया है। 25 दिसंबर 2020 में मैंने लॉन्च किया था, क्रिसमस डे के ऊपर। और ये ऑफिशियली मैंने लॉन्च किया था। फिर पहली वीडियो मैंने 30 तारीख को डाली थी, तो लॉन्च एक्चुअल में 25 को बनाया था मैंने। तो ऋषभ का आंसर चलिए तो सही है। ऋषभ जी मुबारक हो आपको, आपने तो गोवा। जो गिव अवे विनर है, इनका हम लोग परफ्यूम जो गोवा गिव अवे कर रहे हैं, ये एक नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा 9621111816, या फिर हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है यही वाला, इस पे हमें मैसेज कर दीजिएगा आपका फुल एड्रेस विद ईमेल, तो हम लोग इसको मंडे को शिप कर देंगे। तो कांग्रेट्स ऋषभ, यू हैव वॉन अ वेरी गुड गिव अवे। और मैं हसन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप मेरे चैनल पे थैंक आए, यू सो आपने मच, आके थैंक यू सो बताया। मच, आपसे हमें वाकई, बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। जी जी जी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप बात करते रहेंगे, जब आपकी नई चीजें आएंगी तो हम दोबारा आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। मे बी हम यूट्यूब पे कुछ इकट्ठे कुछ करेंगे, मे बी जी कोलैबोरेट जी करेंगे, जरूर, और होपफुली विल डू वी विल समथिंग। टेक इट फॉरवर्ड। सो बहुत बहुत श्योर शुक्रिया श्योर। दोस्तों सबका इस प्लेटफॉर्म में लाने के। नेक्स्ट हफ्ते शायद मैं मोहित खत्री को लेके आऊंगा, और शायद मैं और ब्रांड से बात कर रहा हूँ, मे बी फॉरेन ब्रांड से भी बात कर रहा हूँ। और ये आई विल ट्राई टू डू दिस Instagram live in English also, so that will happen with the time also. So thanks everyone for joining this particular giveaway. Thanks Hassan, and congratulations to the winner. I hope you enjoyed the conversation. थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you, bye bye, cheers. बाय बाय।